Okay, good morning. सबको सुप्रभात। Did you all get a good night's sleep? क्या आप अच्छे से सोए रात में? Okay. So that means you are all awake today. तो इसका मतलब है कि आज आप सब जगे हुए हैं 100%. 100%। Okay. Prince, I think this the highs, or if you can, the monitors are completely gone. Check. Just check. Yeah, this is fine. Do you want to check your mic? Chance? चेक। It's okay. Check. Check. There's a ring. Huh? Is there a feedback? There's a feedback. Check. Okay. All right. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we submit this morning into your hands. पिता, आज की सुबह को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Lord, everything that we are about to learn, जो भी चीजें हम सीखने वाले हैं अभी, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray that you will come and you teach us. हम प्रार्थना करते हैं कि आप आएं और हमें सिखाएं। We surrender every word. सारे शब्दों को हम समर्पित करते हैं। We surrender our mind and our hearts. हमारे मन और हमारे हृदय को समर्पित करते हैं Continue to pour out your wisdom and your knowledge over us. और लगातार परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान को हमारे ऊपर उड़ेलते रहिए। Open our eyes to the wonder of your word. और परमेश्वर हमारे आंखों को आपके वचन की अद्भुत अद्भुत शक्ति में हमें जानने दीजिए। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. Okay. You have to fix that feedback, Prince. Okay, it's good to see you all once again. और बार फिर आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। I hope you had a good first day और yesterday. मैं आशा करता हूँ कि कल आपका पहला दिन काफी अच्छा गया। Yes? No? Maybe? हाँ या ना? Okay. Are you all learning something? क्या आप सब कुछ सीख रहे हैं? Okay, that reduced by 50%. कि आप 50% घट चुके हैं जो आप सीखे। Okay. But we really hope that you are learning every day. तो हम आशा करते हैं कि रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। Okay, so let's continue with where we left. और आइए हम शुरुआत करते हैं जहां से कल हम लोगों ने समाप्त किया था। We started at looking at worship. और हम आराधना के बारे में देख रहे थे। Right? We looked at how worship transforms us. और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आराधना हमको बदल देती है। In worship, we experience the presence of God. और किस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। Where worship empowers us to rule and reign. और किस प्रकार आराधना हमें शासन और राज करने के लिए सहायता करती है। Right? In worship, और आराधना में we recognize and acknowledge who God is. और हम स्वीकार करते हैं आराधना में कि परमेश्वर कौन है। Worship is reverence for God. और परमेश्वर आराधना परमेश्वर के प्रति हमारी Worship, श्रद्धा है। worship is communion with God. और परमेश्वर के साथ हमारा एकीकरण होना है। And worship is our response to an encounter with God. और परमेश्वर के साथ हमारा सामना उसका प्रति उत्तर है हमारी आराधना। Okay, how many of you remember all of that? कितने लोग ये सारी बातों को याद रखते हैं? Okay, that's fine. So others don't remember any of the. तो दूसरे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या आपको नहीं पता कि कल हम लोग क्या सीखे थे? Yes. हाँ, No. ना? Okay, I'm going to ask that question one more time. तो इस And प्रश्न in my classroom, I expect an answer. तो Okay. इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से आपसे पूछूंगा और मेरी कक्षा में चाहता हूं कि आप उत्तर दें। Can be yes or no, no problem. हो सकता है हाँ या ना, कोई समस्या नहीं। So the question is, तो क्वेश्चन जो है, do you remember all of this, what we learned yesterday? तो जो भी हम लोगों ने कल सीखा, क्या आप उसको याद रखे हैं? ठीक है, okay. बहुत धन्यवाद। So we ended the class by learning about worshiping Him in spirit and in truth. और हम लोगों ने क्लास की समाप्ति की थी
उसकी आराधना करने के लिए सच्चाई और आत्मा में। right? And so we also learned that if there is true worship, there is also false worship. और हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर सच्चाई की आराधना होती है तो नकली या गलत आराधना भी होती है। Okay, if there is true worship, there is also false worship. तो अगर सच्चाई की आराधना है तो संभवतः गलत और नकली आराधना भी होती है। Right, so true worship is when we worship Jesus in spirit and in truth. तो सच्ची आराधना वो होती है जब आप यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Right, what does it mean to worship him in spirit? और आत्मा में वर्शिप का आराधना करने का अर्थ क्या होता है? Yeah, use the mic, it's okay. With truth and the power of Holy Spirit. Okay, that's right, right? We worship him with the power of the Holy Spirit that is inside of us, right? तो हम उनकी आराधना करते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो हमारे अंदर वास करता है। And when the Bible says we worship him in truth, और बाइबल बताती है कि हम उनको आराधना करते हैं सच्चाई से। we saw two things. हम दो चीजों को देखते हैं That Jesus is the truth, कि यीशु सच्चाई है right? And so we believe in what Jesus did और हम विश्वास करते हैं यीशु ने क्या किया on the cross, क्रूस पर, right? That he paid the price for us. और उसने हमारे लिए वो मूल्य को चुकाया। And so we learned that truth is not an idea or just another theology or a doctrine. और हम ये नहीं सोचते कि सच्चाई किसी प्रकार का एक मानना या कोई चलन है या किसी प्रकार का थियोलॉजी है या परमेश्वर की पढ़ाई है। But truth is a person. तो हम देखते हैं कि सच्चाई एक व्यक्ति है। Okay, so we worship Jesus in spirit and in truth. तो हम यीशु को सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। False worship गलत आराधना is simply सामान्यतः you are worshiping something or someone else आप किसी को आप आराधना कर रहे हैं with all the wrong attitudes. तो हर एक गलत आचरण से। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Are you with me? Okay, so in false worship तो or sorry, go ahead. False worship can also be considered as fleshly worship. तो जो गलत आराधना है वह देह की आराधना भी हो सकती है, शारीरिक आराधना भी हो सकती है। Okay, let's very quickly go to Isaiah chapter 5 verse 12. आइए हम जल्दी से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 12वां वचन देखेंगे। And one more scripture I'd like you to turn to is Amos chapter 5 verse 23. और अमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 23वां वचन दूसरा उसको आप खोल के रखें। Okay, and Isaiah chapter 5 verse 12. यशायाह उसका 5वां अध्याय उसका 12वां वचन। Okay, Isaiah chapter 5 verse 12. Please read it. यशायाह 5 का 12। उनकी जेवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते, उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। Wow, you see that they are using the musical instruments, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक वाद्य यंत्र, right? Tambourine and drums and lyre and cymbals. और वीणा और सारंगी और डफ और बांसुरी ये सब, But it says they do not regard the deeds of the Lord, the work of the Lord. लेकिन यहाँ पे कहता है कि वे उसके हाथों के काम को नहीं जानते। And so, fleshly worship or false worship तो जो देह की आराधना या जो गलत आराधना है, is simply we can sing all the songs we want. तो हम बहुत सारे गीतों को तो गा सकते हैं, We can use all the amazing sound system we want. और जितने भी आवाज के जो यंत्र हैं उनको भी हम लोग इस्तेमाल व्यवहार कर सकते हैं। Right? So it is possible that you can sing the songs and play every instrument and not think about what God has done for us. और हो सकता है कि आप ये सारी बातों को जानते हैं, उसको बता सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है उसके जो उसने किया है उसको आप नहीं जानते हो। Okay, that is the beginning of the downfall in false worship. और वही नकली आराधना में शुरुआत है, गलत आराधना में और गिरना।
Okay, let's go to Amos chapter 5, verse 23. आमोस का 5वां अध्याय उसका 23वां वचन कोई पढ़े। Okay. Whose favorite book is Amos? किसका मनपसंद किताब है आमोस? Yes. Amos is after Genesis, before Revelation. और आमोस उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले है, It's somewhere there. कहीं तो है। Thank you. धन्यवाद। Thank you. Can I request someone, one of us, to also read it in Hindi, और please? कोई हिंदी में भी पढ़े। आमोस का 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। Amos is after the book of Joel and before Obadiah. हे चीजों को पुराण मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। Okay, so here God is telling his people that take away from me the noise of your songs. और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि अपने गीतों का शोर मेरी ओर से ले जा, The melody of your harps और आपका जो गीतों का हृदय का संगीत है I will not listen. मैं उसे नहीं सुनूंगा। Okay, so God is saying that if you sing all the songs, use all the instruments, तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप हर एक गीतों को गाते हैं, हर एक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, but if you don't have a heart of gratefulness and thankfulness for what I have done, अगर आपके पास वो हृदय नहीं है जिससे आप उपकार माने, आप धन्यवाद दे आपके हृदय में, I will resist your worship. तो मैं आपकी आराधना को भी स्वीकार नहीं करूंगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Yes. Okay. So so Isaiah 5 verse 12 and Amos 5:23 are good scriptures or reminders to know that this is the beginning of the downfall of in worship. और आमोस का 5 का 23 और इसाया का 5 का 12 ये ऐसे वचन हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम किस प्रकार गिर जाते हैं आराधना में। Okay. So let's look at some of the attitudes in false worship. तो आइए हम अलग-अलग आचरणों को देखेंगे जो गलत आराधना में होती है, Right. Some of the attitudes or the posture of your heart that leads to false worship. और कुछ आचरण या फिर आपके शरीर की मुद्राएं जो आपको गलत आराधना की ओर ले जाती हैं। Okay. The first in the list is pride. और सबसे पहला जो सूची में है वो है अहंकार। Yes, ahankar. We are going to look at a lot of scriptures. और हम लोग बहुत सारे वचनों को अभी देखेंगे। First, let's go to Proverbs. आइए हम नीति वचन में जाएंगे। Proverbs chapter 6. उसका 6वां अध्याय Proverbs chapter 6, verse 16 onwards. नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16 से। Okay, so remember in John chapter 4, verse 23, the Bible says, the Father seeks true worshippers. तो Right? आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वह सच्चे आराधकों को खोजता है। Okay, so if there are true worshippers, there are also false worshippers. तो अगर सच्चा आराधक भी है तो झूठा आराधक भी है। Right? If there's true worship, there's also false worship. तो अगर सच्चा आराधक है तो झूठा आराधक भी है। Okay. Now, what is the opposite of pride? तो अहंकार का जो विपरीत या विलोम शब्द वो क्या होगा? Humble? Okay, something else? Yes? Right, so the opposite of pride is humility or humble. तो जो अहंकार शब्द है उसका विपरीत होगा नम्रता और नम्र होना। Yeah? Okay, everybody say humility in whichever language that you're comfortable. आप ह्यूमिलिटी शब्द को अपने भाषा में कह सकते हैं, What is नम्र it? होना या दीन होना। Deen. दीन होना। Okay, so the opposite of pride is humility. तो जो अहंकार का जो विपरीत है वो है नम्र या दीन होना। So if humility is the attitude that is helpful in true worship, तो अगर नम्र होना या दीन होना अगर वह सच्चे आराधना के लिए सहायक है, right, we come before King of Kings in all humility and bow before him. और हम
राजाओं के राजा के पास हर एक नम्रता को लेकर उसके सामने झुकते हैं, Right? That is the posture of humility. You bow down. और वह नम्र होने का एक आपकी शारीरिक मुद्रा या आसन है, आप झुक जाते हैं। Right? Pride is the opposite. लेकिन अहंकार ठीक उसके विपरीत या उल्टा है। Okay, so is everybody in Proverbs chapter 6? क्या सब नीति वचन अध्याय 6 में है? Yes, okay, awesome. Proverbs chapter 6, verse 16 onwards, 16 to 19. आइए हम नीति वचन उसका 6ठा अध्याय 16 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। Okay, thank you. So from verse 16 onwards, तो हम देखते हैं 16 के बाद, God says, the Bible is writing there तो बाइबल में वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, that there are 6 or 7 things that the Lord hates. तो यहाँ पे 6 या 7 चीजें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। Okay, this is the list of things that the Bible is saying that the Lord hates. तो ये 6 वस्तुएं, 6 चीजें हैं जिसको बाइबल बताती है कि परमेश्वर घृणा करता है उनसे। Okay, जी, the first thing on the list जो पहली चीज है उस सूची में is what? वो क्या है? Pride or Come yeah, okay. Right, the first thing on the list that God hates is pride. और सबसे पहला जो उस सूची में जिससे परमेश्वर घृणा करता है वो है घमंड। Okay, I want everybody to look at me for just a minute. मेरे ऊपर देखिए, एक मिनट मेरे को देखिए आप Okay, everyone. सब लोग। So, if you don't remember everything or anything I teach, अगर आप जो भी हम सिखा रहे हैं उसको आप अगर याद नहीं कर रखेंगे, okay, all the other points, if you don't remember, it's fine. सारी बातों को अगर आप नहीं याद भी रखेंगे तो चलता है, But just remember this one point. It's तो enough. सिर्फ एक बात को यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ उसको Just- याद रखिए, Just this. सिर्फ इसे। Okay. Pride घमंड, will destroy your calling. और घमंड या अहंकार आपके बुलाहट को नाश कर देगा। Pride will absolutely destroy your calling. और जो घमंड है वो सटीक रूप से आपकी बुलाहट को नाश कर देगा। It will destroy you as a person. आपको एक व्यक्ति के रूप में आपको बर्बाद कर देगा, It will destroy the people around you. और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी बर्बाद कर देगा। So, always strive for humility. तो हमेशा आप नम्रता के लिए भूखे रहें। You know, pride says, और घमंड कहता है I am better than you. मैं आपसे अच्छा हूं, Why should I listen to you? मैं क्यों आपको सुनूं, I know better. मैं अच्छा जानता हूं, Right? I have been doing ministry for 20 years. मैं 20 साल से सेवकाई में हूं, You only came in yesterday. तुम सिर्फ कल आए हो, Are you teaching me? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? Pride is always followed by fall. और जब भी घमंड होता है उसके बाद गिरना निश्चय है। No one, not a single person who was full of pride और कोई भी एक व्यक्ति जिसमें घमंड भरा था succeeded in life. वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। It may look like they have succeeded for a short period of time, और ऐसा जान पड़ता है कि छोटे समय के लिए और संक्षिप्त समय के लिए वो सफल हो गए हैं, they eventually fall. लेकिन वो गिरते ही हैं। Why? क्यों? Because God, क्योंकि परमेश्वर He absolutely hates pride. कि वह घमंड को बहुत ही ज्यादा घृणा करता है। Are you with me? क्या हमारे साथ है? Okay. Is it okay if we look at some more scriptures? और क्या ये सही ठीक है कि अगर मैं और ज्यादा वचन को देखूं? No problem. कोई समस्या नहीं। Because I want to dwell on pride for some time. तो मैं चाहता हूं कि हम इस
घमंड के विषय पे थोड़ा और चर्चा करें Let's go to Proverbs chapter 16. और नीति वचन अध्याय 6 में जाएं Proverbs 16, verse 18. और उसका 18 वचन, नीति वचन 16 उसका 18 वचन, नीति वचन 16 उसका 18 वचन। नीति वचन 16 उसका 18। What आता है? घमंड, What is that? राइट। Okay. Right. So in English, it says, too much pride will destroy you. तो अंग्रेजी में कहती है कि बहुत ज्यादा घमंड आपको नाश कर देगा। Okay. Actually, turn to the person next to you. आपके लोग जहाँ पे बैठे हैं उनके अगल बगल देखिए, Okay. Look them in the eyes. उनकी आंखों में देखिए, Look. उनकी आंखों में देखिए, आपके बगल में बैठे लोग की आंखों में देखिए, देखिए, देखिए. जी देखिए। Tell them pride will destroy you. आप कहिए कि घमंड आपको बर्बाद कर देगा। Okay. Now turn to the person on the other side. और फिर दूसरे साइड में देखिए। Come on. आइए करेंगे इसे। आंखों को देखिए. हमने आंखों में देखिए, आंखों में देखिए, देखिए. Yeah. Okay. It sounds very funny, no? Yeah, but it's not. Okay. Please remember the pride will destroy you. Let's look at some more scriptures. तो कृपया याद रखिए कि घमंड आपको बर्बाद कर देगा। आइए और भी वचनों को हम I देखेंगे hope you're writing this all down. और मैं आशा करता हूं कि आप इसे जरूर लिख रहे होंगे। Okay. Let's go to Proverbs chapter 11. आइए नीति वचन 11 अध्याय, Same book, Proverbs 11, 11 अध्याय verse 2. उसका दूसरा वचन। By the way, Proverbs talks a lot about pride. और नीति वचन घमंड के बारे में बहुत सिखाता है। I'm just sharing 3 verses. मैं सिर्फ आपको 3 वचन ही सिखा रहा Okay, हूँ, don't forget these. इसको आप कभी मत भूलिएगा। Proverbs 6, 16 onwards, नीति वचन 6 उसका 16 से, and Proverbs 16, 18, और नीति वचन 16 का 18, and Proverbs 11, verse 2. और 11 का 2, नीति वचन 11 का 2। So, 11, verse 2, what does it say? जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों से बुद्धि होती है। Amen? So, too much pride can put you to shame. और बहुत ज्यादा घमंड करना आपको शर्मिंदा कर सकता है। It's wiser to be humble. और ये बुद्धिमानी की बात है कि आप नम्र रहें। Okay, you see, the world that we live in, आप देखिए कि जिस संसार में हम रहते हैं, the world says that humility means और यह जो शब्द है ह्यूमिलिटी, इसका मतलब होता है that you are weak. कि आप कमजोर हैं। The world says that if you are humble, you are weak. तो संसार कहता है कि अगर आप नम्र हैं या दीन हैं तो आप कमजोर हैं। But Jesus, लेकिन यीशु, our King of Kings, वो वो राजाओं का राजा है, right, who created the heavens and the earth, जो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, the Alpha and the Omega, जो अल्फा और ओमेगा है। right? Psalm 33 says, और भजन संगीता 33 कहता है, by the word of the Lord the heavens were made, परमेश्वर के शब्दों से संसार की, स्वर्ग की रचना की गई, and the starry host with the breath of his mouth. और उसका जो और तारागण उसके सांसों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। Right? Isaiah chapter 40, और यशायाह की 40वां अध्याय, God is telling Isaiah, परमेश्वर यशायाह से कह रहा है, right, lift up your eyes to the heavens. अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर देख, Who created all of these? और इनको किसने बनाया। Right? By his great power, उसके बड़े सामर्थ्य से he calls each and every star by its name, वह एक एक तारागण को उसके नाम से पुकारता है, and not one of them is missing. और उसमें एक भी खोया नहीं। And in the book of Job, और जो अय्यूब की किताब में, God is asking Job, और परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है, tell me, Job, जो अय्यूब बता, can you hold the Pleiades of the constellation in your hands? क्या तुम इस तारागण को अपने हाथ में रख सकता है? He's simply saying, I hold the entire universe in the span of my hands like this. और वो कहता है कि मैं सारे संसार को
सारी सृष्टि को अपने हाथ के तलवे पे रखता हूँ। Do you believe that we serve an awesome God? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं? Do you believe that? क्या आपको विश्वास करते हैं? Yes, He is great and magnificent, isn't it? और वह बहुत ही अलौकिक और महान है। Yes or no? हाँ या ना? And yet, in Philippians chapter 2, और तब भी फिलिप्पी की अध्याय 2 में when you read that जब आप उसको पढ़ते chapter, हैं, it says Jesus humbled himself वो कहता है कि यीशु अपने आप को दीन किया even to the death on the cross. He humbled और himself. वह ऐसा दिन हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली He was obedient to his Father in heaven. और अपने स्वर्गीय पिता के लिए वो काफी आज्ञा मानने वाला, आदेश मानने वाला बना। In John chapter 13, और यूहन्ना की पुस्तक के 13 अध्याय में, a very famous और chapter, बहुत प्रसिद्ध अध्याय है, what does Jesus do? यीशु क्या कह रहे हैं? He takes a bucket of water, वह एक बाल्टी का पानी का बाल्टी लेते हैं he takes a towel, और एक टॉवल लेते हैं he ties it around his waist, और अपने कमर में बांधते हैं। he humbles himself, वो अपने आप को नम्र करते हैं he stoops down, और वह झुक जाते हैं and he begins to wash the feet of his और अपने disciples. चेलों के पैरों को धोना लगते हैं। Jesus is our ultimate example of humility. और सर्वोपरि उदाहरण जो नम्रता या दीनता का है वो है यीशु मसीह। So what I want to teach you is तो मैं आज को आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, humility is not weakness. और नम्रता या दीनता कोई कमजोरी नहीं है। You have to be strong to be humble. आपको मजबूत बनना पड़ेगा कि आप नम्र रहें। Can I say that again? क्या मैं फिर से कह सकता हूँ? You have to be strong to be humble. आपको मजबूत रहना पड़ेगा आपको नम्र बनने के लिए। Let's imagine that this is a wall तो आप इसको कल्पना कीजिए कि ये दीवार है and I want to jump across this wall and go to the other side. और इस दीवार से मैं कूद कर दूसरे तरफ जाना चाहता हूँ। Right? So one of you तो आप में से एक must be strong enough आपको मजबूत होना पड़ेगा to bend down and give me your back ताकि आप झुक जाएं और आपके पीछे so I can climb on you. और आपके Over the पीठ पे wall. चढ़ के। A weak person may not be able to take my weight. तो जो कमजोर व्यक्ति रहेगा वो मेरे भार को हो सकता है कि सह नहीं पाएगा। Right? That's an example to say that you have to be strong to be humble. तो एक उदाहरण दिया मैंने कि आपको मजबूत रहना पड़ेगा नम्र बनने के लिए। Right? You have to be strong to say sorry first. आपको ऐसा मजबूत रहना पड़ेगा कि आप पहले क्षमा मांगे। The world says you don't say sorry first. आप वो संसार कहता है कि आप कभी क्षमा मत मांगिए, सॉरी मत बोलिए। Okay, because saying sorry first somehow is weakness. तो अगर आप पहले क्षमा मांगते हैं तो वो कहलाता है कि ये तो कमजोरी है। A lot of relationships are broken बहुत सारे संबंध या रिश्ते टूट जाते हैं because someone क्योंकि कोई did not make the first move and say sorry. और किसी ने पहला अपना कदम नहीं उठा के सॉरी नहीं बोला Because they were too proud. क्योंकि वो काफी घमंडी थे। You see what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Right? Pride will destroy you, your calling, your family, and all the relationships around you. और जो घमंड है वो आपके परिवार को, आपके रिश्ते को और हर एक चीजें जो आपके इर्द गिर्द है वो सबको बर्बाद कर देगा। Okay, let's go to Isaiah chapter 14. आइए हम यशायाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय में जाएंगे। The first worship leader जो सबसे पहला आराधक था had serious problems with humility. तो उसको बहुत ही गंभीर समस्या थी दीनता को लेकर। Okay. Who was the first worship leader? तो सबसे पहला आराधक कौन था? Yeah. The Bible talks about how Lucifer, तो बाइबल बताती है लूसीफर के बारे में। right? He did not have to play a guitar. उसको गिटार नहीं बजाना था, He was like a guitar, वह गिटार जैसा था। right? When he lifted up his wings and whatnot, music just came. और जैसे ही वो अपने पंखों को उठाता था तो संगीत खुद ब खुद आ जाती थी। So he was a chief archangel, और वह बहुत
स्वर्गदूतों का मुखिया था in bringing worship before God. और परमेश्वर के सामने वह आराधना को लेकर आता था। But let's look at Isaiah 14, आइए हम यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय देखेंगे, 13 to 15. 13 से लेकर 15 तक। Okay, Isaiah chapter 14, यशायाह 14 13 to 15. 13 से लेकर 15 तक। कोई पढ़े? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर गिरा दूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे आसमानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Amen. Thank you. 15 भी That's पढ़ना, fine. 15 भी पढ़ना। तू अधोलोक में उस गड़हे की तरह तब उतारा जाएगा। Okay. Thank you. Thank you. धन्यवाद। So, verse 13 तो 13वां वचन, starts off by saying, You said to yourself, और 13वां वचन कहता है कि तू मन में अपने आप से कहा, I will climb to heaven, और मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा I will place my throne और मैं अपना सिंहासन above the highest stars. ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा I'll sit there with the gods. और मैं वहां पे बैठूंगा। Okay, so it's talking about Lucifer here. यहाँ पे लूसीफर के बारे में बताया है, He's saying, I will become like the gods. और मैं परमेश्वर का जैसा हो जाऊंगा I will make my throne to ascend above the throne of God. और परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा I will rise above the clouds, और मैं बादलों के ऊपर चला जाऊंगा, just like the Most High God. जैसा कि सर्वप्रधान परमेश्वर रहता है। We all know what happens to him. तो मैंने जानता कि इसका क्या होता है, He was thrown out of the heavens. और वहां पर स्वर्ग से उसे फेंक दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। That's what God will do to us. और वही चीज परमेश्वर हमसे भी करेगा। If our heart is not filled with humility, अगर आपका हृदय दीनता से या नम्रता से ना भरा हो, but instead if it's filled with pride, अगर यह इसके बजाय अगर वो घमंड से भरा हो, God will simply cast you out. और परमेश्वर आपको सिर्फ निकाल के बाहर फेंकेगा, He will not hesitate. वह कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। Okay, one last verse. और अंतिम वचन, Last verse. James chapter 4 verse 6. याकूब की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 6वां वचन। James chapter 4 verse 6. कोई पढ़े? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Okay, this is the last verse on pride. Chapter 4 verse 6. Yes. वह तो और भी अनुग्रह देता, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध रहता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Okay, so very simply it says God opposes the proud. तो यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध रहता है। In other words, there's an other English word called resisting the proud. और परमेश्वर अभिमानियों को रोक के रखता है। Okay, so what does resistance mean? और उसका प्रतिरोध करने का मतलब क्या होता है? Okay. विरोध करने का मतलब क्या होता है? All right, Chandan, just start begin to walk towards me Or- with full force. Yeah, just begin to walk towards me. Okay, so keep pushing. So he wants to come to me, but I'm resisting him. तो वो चाहता है कि वह परमेश्वर के पास जाए, लेकिन परमेश्वर उसे रोकता है। Okay, so this is what God is saying. As worshippers, और आराधक के रूप में, right? We read in Isaiah 5 verse 12 and Amos chapter 5 verse 23 और इसाया 5 का 12 और आमोस का 5 का 23 में हम लोगों ने देखा, that they were singing songs, वो लोग सब गीतों को गा रहे थे playing instruments. और वाद्य यंत्र बजा रहे थे। They were coming towards him. वो उसके पास करीब आ रहे थे They thought was right worship और वो सोचते थे कि वो सच्ची आराधना कर रहे or हैं true worship, या अच्छी आराधना कर रहे हैं, but God was simply resisting them. लेकिन परमेश्वर उनको रोक रहा था। As a worshipper, that is, I do not want that. आराधकों के रूप में हम नहीं चाहते कि ऐसा हो।
I don't want God to resist my worship. मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे आराधना का विरोध करे। I want him to accept my मैं worship. चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करे। Right? In Genesis, we see that God accepted the worship of Abel, और हाबिल की जो आराधना थी उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, but he resisted the worship of Cain. और वह काइन की आराधना को प्रतिरोध किया या विरोध किया। Right? And in James chapter 4, verse 6, और याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका He- 6वां वचन, he says, I resist the proud, वह कहता है कि मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं, but I give grace to the humble. लेकिन जो दीन या नम्र होते हैं उनको मैं अपनी अनुग्रह को देता हूं। Amen. आमीन। Our God is a gracious God, isn't he? हमारा परमेश्वर करुणा से भरा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। Do you believe that? क्या आप उसको विश्वास करते हैं? Okay. So he gives grace to the humble. तो वह दीन को अनुग्रह देता है। Right? You can say, Father, I come before you. आप कह सकते हैं कि पिता मैं आपके सामने आता हूं, I am struggling with this weakness in और my इस- life. इस जीवन के इस कमजोरी से मैं संघर्ष कर रहा हूं, I don't know how to overcome it. मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार इससे बाहर आऊं, I'm struggling with these challenges in my life. और इस चुनौतियों से जो मेरे जीवन में है मैं संघर्ष कर रहा हूं, कर रही हूं, I have this addiction in my life. और मेरे जीवन में यह एडिक्शन है, I don't know how to overcome it. और मैं नहीं जानता किस प्रकार इस चीज से मैं बाहर आऊं। Okay. When you go before God जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, in humility, आप नम्रता से, He gives grace to you. वो आपको अनुग्रह देता है। Okay. In 2 Samuel दूसरा शमूएल chapter 22, उसका 22वां अध्याय verse 36, उसका 36वां वचन, it says, वो ऐसा कहता है, He stooped down वह झुक गया to make me great. कि वह मुझे महान बनाए। He stooped down. Stoop means to bend down, to go down. वो घुटनों पे आ गया, झुक गया। And the scripture is saying God stoops down परमेश्वर झुक जाता है to make you great. कि आपको वो महान बनाए। Isn't he so beautiful? क्या ये बहुत सुंदर बात नहीं है? Right? He doesn't have to make us great, उसको हमें महान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, but he enjoys, he takes great pleasure in तो that. उसको वह भाता है कि वह हमें, Right? He comes down to our level. वह हमारे लेवल में आ जाता है। Right? Only if we humble ourselves, अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे, he stoops down वह झुक जाता है to make us great. हमें महान बनाने के लिए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Right? Now we spoke about pride in a little bit of a detail और हम लोगों ने घमंड के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से देखा, बोला, in relation to false worship. और वह हमारे गलत आराधना या झूठे आराधना के संबंध में। It is impossible to worship God in spirit and in truth और यह परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना एकदम असंभव नहीं है with pride in our hearts. अगर आपके हृदय में घमंड हो। When you come before the king, जब आप राजा के सामने जाते हैं, it doesn't matter how many years of experience you have in ministry. आप यह नहीं होता कि कितने सालों का आपका सेवकाई में आपका अनुभव है, It does not matter what your title is. और वह आपका जो टाइटल दिया जाता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। Pastor Roshan, Reverend Roshan, Dr. Roshan, या पास्टर रोशन, रेवरेंड डॉक्टर रोशन, रेवरेंड रोशन, none of the title matters. और ये सारे जो टाइटल है कोई भी इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है। When you come before the king, जब आप राजा के सामने जाते हैं you better come with a humble heart. तो अच्छा है आपके लिए कि आप दीन हृदय लेके जाएं। Right? In Revelation chapter 4, और प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय we see that हाँ। when angels worship, हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, when these living creatures वो जीवित प्राणी हैं, with eyes all around, अपने उनके सब जगह आंखें हैं। right? When they were worshiping, जब वो आराधना कर रहे थे, the 24 elders, 24 प्राचीन they took their crown वह अपने ताज को लेकर and cast it down, और उसको नीचे कर दिए, simply to say, यह कहने के लिए our titles or our crowns don't matter before the King of Kings. जो हमारा जो ओहदा या हमारा जो ताज है वो राजा के सामने कोई मूल्य नहीं रखता। They humble themselves in His उन्होंने अपने presence. आप को नम्र किया। Amen. आमीन। And I pray this, that
for all the days of our lives, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन के सब दिनों के लिए that we will humble our heart, हम अपने हृदय को नम्र करेंगे, not even for one moment एक क्षण के लिए भी नहीं that our hearts would be arrogant, कि हमारा जो हृदय है वह घमंडी हो, that we will always treat each other in love and humility. ताकि हम एक दूसरे को प्रेम और नम्रता से हम उनको व्यवहार करें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes? हाँ जी, All good? सब ठीक है? Okay. How long do we have? 5 more minutes for the break? Okay, let's continue. Another aspect of false worship जो दूसरा भाग है झूठी आराधना का, is idol worship. वह है मूर्ति पूजा, Idol worship मूर्ति पूजा or idolatry. या मूर्ति पूजना, मूर्ति पूजक। Okay. Now I want to make one statement very clearly. मैं यहाँ पे एक बात को बहुत साफ रीति से रखना चाहता हूँ, Okay, and I hope you can interpret it well. So, all statues are idols, जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी आकृति हैं, वो मूर्तियां हैं, but not all idols are statues. लेकिन हर मूर्तियां हर एक मूर्तियां स्टैचू नहीं है। I need to search. Yeah. So, all idols, जितनी मूर्तियां हैं all idols are statues, वो स्टैचू है, But- यानी पत्थर की आकृतियां। but not all statue. बट लेकिन जितने भी आकृतियां जो हैं, जो पत्थर की आकृतियां हैं, Fine. Okay. Is everybody following? समझ में आ रहा है आपको? Okay, I'll say it one more time. All idols, oh sorry, all statues are idols, तो जितने भी आकृतियां पत्थर की आकृतियां हैं वो But- मूर्ति है, but not all idols are statues. लेकिन हर एक जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की आकृतियां वो मूर्ति नहीं है। So what does that mean? इसका अर्थ क्या होता है? So idolatry, everybody say idolatry सब लोग आइडोलेट्री बोलिए, or murti puja. मूर्ति पूजना। Okay. So idolatry, जो मूर्ति पूजना है okay, in the spiritual realm और वह आत्मिक चीजों में is equivalent वह बराबर है, to adultery in the natural. तो वह स्वाभाविक रूप से अडल्ट्री यानी Vyabhichar. व्यभिचार करना। Hey, come on. Okay, so idolatry in So- the spiritual realm जो मूर्ति पूजना है जो आत्मिक रूप में, is equivalent to adultery in the natural. तो व्यभिचार करना वह जो प्राकृतिक रूप में वह बराबर है उसके। Okay, so what is adultery in the natural? What is So- adultery? तो व्यभिचार करना क्या है? So, for example, I'm married, तो जैसे कि अगर मैं शादीशुदा हूँ, I have a wife, मेरी एक पत्नी है, but if I have an affair outside of a marriage with another woman, और अगर मुझे किसी और स्त्री के साथ मेरा कोई अगर मेरे विवाह से निकल के अगर कोई संबंध है, right? If I have sexual relations with another woman instead of my wife outside of marriage, और अगर मैं अगर किसी और के साथ अपना यौन संबंध बनाता हूँ मेरी पत्नी के अलावा, that is adultery. तो वह व्यभिचार कहलाता I है। have committed adultery. तो मैंने व्यभिचार किया है। So, I'm giving this example because it's very important and I want you to pay attention. तो मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। Idolatry जो मूर्ति पूजना है, is you telling आपका कहना that I'm choosing something or someone else as gods कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी और को या किसी और चीज को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा हूँ instead of Jesus. यीशु को छोड़ के। Understood? It's very serious. ये बहुत ही गंभीर बात है। Okay. Now, God to the people of Israel, परमेश्वर इजरायलियों को He tells them, उसे कहता है, when they are getting out of Egypt, जब वह मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, He very clearly tells them उनको साफ रीति से वह कहते हैं that don't worship the gods of the Canaanites. जो कनानियों का परमेश्वर है उसकी आराधना मत करना। In fact, let's go to this scripture. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। Where is that? Go to Exodus. निर्गमन की पुस्तक
Exodus chapter 34, verse 13. और निर्गमन उसका 34वां अध्याय Okay, I'm going to give you three scriptures. उसका 30वां वचन, Please write it all down और सबको आप लिखिए। And निर्गमन 34 का and then we'll read it. तो हम उसको फिर पढ़ेंगे। Okay, Exodus chapter 34, verse 13, निर्गमन का 34वां अध्याय and Exodus 23, verse 24, और निर्गमन उसका 23वां अध्याय 24वां वचन। Okay, I'll repeat it one more time. एक बार फिर से बोलेंगे। The first scripture that I gave पहला जो वचन है is Exodus chapter 34, निर्गमन उसका 34वां अध्याय verse 13. उसका 13वां वचन। Okay? The next scripture, जो दूसरा वचन है Exodus chapter 23, निर्गमन का 23वां अध्याय verse 24. उसका 24वां वचन। Okay? Exodus chapter 23, verse 24. निर्गमन का 23 का 24वां वचन। And one last scripture, और अंतिम जो पंक्ति है Deuteronomy chapter 7, व्यवस्था विवरण उसका 27 verse 5. उसका 5वां वचन। Okay? Deuteronomy chapter 7, verse 5. व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 27वां अध्याय उसका 5वां वचन। Okay, you wrote it all down? सब उसको पढ़ लिख लिए? Yes, no, maybe? हाँ या ना या हो सकता है। Okay, great. So we'll stop here. तो अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। We'll go for our break हम छोटा अल्प विराम के लिए जाएंगे and we'll come back and continue. और फिर आकर हम उसको फिर से लगातार। Sorry? All three? Oh, okay, so Exodus chapter 34, निर्गमन का पुस्तक उसका 34वां अध्याय verse 13. 13 वचन। Okay, Exodus 34, verse 13. Exodus 23, verse 24. निर्गमन 23 का 24। Yes? हाँ। Okay, and Deuteronomy chapter 7, verse 5. और व्यवस्था विवरण 7 का 27 का 5। Okay, I hope everybody got it. We'll stop here. We'll go for our break and we'll come back and continue.